ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. So, welcome to MSCI 101. This week we are going to study a new topic that is okay. Uh, okay, huh. So this week we are going to study a new topic that is Fourier series. Can someone quickly tell me what is their idea about Fourier series? किसी को भी कुछ आइडिया हो उसके बारे में? बस बेसिक आइडिया चाहिए, पूरी डिटेल में बता दोगे तो मेरे को मेरा क्लास लेने का फायदा नहीं होगा. क्विकली. फोरियर सीरीज कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है, कुछ आइडिया है व्हाट इज फोरियर सीरीज? नो सर. नहीं सर, बस नाम सुना हुआ है और कुछ नहीं. ओके, तो फोरियर सीरीज बेसिकली, सिंस यू गाइस आर इंजीनियर्स, आई विल टॉक इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग. तो फोरियर सीरीज का यूज तुम्हारी लाइफ में ये है कि whenever you are doing some electrical work or you are doing some other mechanical work, there are certain signals that you need to process, and those signals can be processed using uh, by converting it into a Fourier series. Now, how does that work? Because a Fourier series allows you to convert a periodic function or a periodic signal into a form of sum of cosine and sine. तो साइन एंड कोसाइन वेव एनालाइज करना इज इजी, राइट? बट अगर उसका कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, कोई कॉम्प्लेक्स सिग्नल होगा, अगर तुम उसको साइन और कोसाइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, देन इट गेट्स इजियर टू बी एनालाइज्ड. ऑलराइट, सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोरियर सीरीज, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी फोरियर सीरीज नाउ. So Fourier series was actually found by Joseph Fourier. He was the one who theorized how to figure out conversion of any signal in the form of cos and sine. And the clever thing was that after finding the form of any signal after finding the form and expression of any signal in the form of cos and sine, he also figured out what are the coefficients. So as you can see on the screen, we have f of x, which is approximately this particular expression that is visible on the screen, right? So in this particular expression, you can see there are three coefficients: a0, an, and bn. So these three are the coefficients. So these three coefficients were also actually, Joseph Fourier actually provided us with the formulas for these coefficients as well. Right, now there are certain conditions for any signal to be converted into Fourier series, and those conditions were given by Dirichlet. So let's look at what are those conditions. So the Dirichlet's condition for Fourier series is that a function f of x, right, a signal f of x, which has a period from -pi to pi, right, can be written as a Fourier series if it is a real valued function. So first condition clearly signifies that the signal has to have a domain and a range in real space. Basically real field में होना चाहिए वो function, right? The second condition is it is bounded, and when we say something is bounded, we simply mean that the certain signal is integrable. In from -pi to pi, that certain signal is integrable. And why do we need this particular condition? We need this particular condition because we are going to integrate the f of x to find out the coefficients a0, an, bn. So for that we need the bounded condition. The third condition is that it has at most finite numbers of minimas and maximas. So अभी के लिए ये देख लो, it is a very simple form of मतलब बहुत ही simple language में लिखा हुआ है that minimas and maximas should be finite, and discontinuities in the signal are also finite. And we will look at what does this mean कि finite maxima और minima से क्या मतलब है and finite number of discontinuities से क्या मतलब है. And the fifth condition, which is a very important condition, is that the signal has to be periodic. And when we say a certain signal is periodic, we simply mean that f of x is equals to f of x plus t, and which is also equals to f of x plus nt. मतलब अगर हम लोग उसमें कुछ भी नए पीरियड ऐड करते जाएं, ठीक है, the value of f of x is going to remain same. Fine.
Okay, so let's move on to the. तो हम quickly देखते हैं कि what do I mean by finite number of minimas and what I mean by finite number of continuities. Just a second, guys. ठीक है. Okay. ठीक है. Is my pen visible to you guys? मैंने screen अभी shift की है. Yes, sir. Yes. Yes, sir. That's good. So when I say that there are finite number of minimas and maximas, so I would like to show you this by two examples. One is where there is finite number of maximas and minimas, and one is where is a lot, I mean infinite number of maximas and minimas. So right, so this is a signal over here, and so in this signal, if you take a certain period, let's say from 0 to some period t, right, we have only one maxima and we have two minimas, right? You can see why in this particular period 0 to t, we have finite minimas and maximas, right? So this was an example for where there was a finite number of maximas and minimas. Now let us look at an example just to actually for the comparison sake कि कैसे दिखता है अगर if we have a certain signal which has infinite number of maximas and minimas. So from 0 to t, and let's say this is t plus 1, right? We have a certain function which goes like this, right? So for I mean for 1 unit, so in this particular signal, I will draw. Okay, don't mind my drawing, guys, क्योंकि यहाँ पे we are not professional artists. ठीक है, तो just bear with this. All right. So why am I saying there are infinite number of maximas and minimas? Because 1 unit of the signal has a period of, let's say, k, right? The second unit, so for 1 unit, let's say, is alpha 1. This is 1 unit, right? The second unit has so period of first unit is this. Second unit has a period of k by 2. Third unit has a period of k by 4. So basically what we are doing is we are reducing the period of every signal by half. And what happens if so where does the series converge if we are actually adding all the numbers? So 1 से शुरू करते हैं, let's say we have a series 1 से शुरू करते हैं, 1 plus half plus 1 by 4, कहाँ को converge करेगी? This sequence will converge where? Can Sir, anybody 0 to t is alpha 1. sorry? Sir, 0 to t is alpha 1. नहीं, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि this is actually a bunch of units. मतलब ये एक सेकंड, ये हमारा एक सिग्नल है, राइट? सो आई एम सेइंग दैट अप टू दिस पॉइंट दिस इज 1 यूनिट, राइट, एंड दिस इज सेकंड यूनिट. तो इस केस में भी यही चीज है, यहाँ से यहाँ तक वी हैव वन यूनिट, यहाँ से यहाँ तक वी हैव 2 यूनिट्स, एंड यहाँ से यहाँ तक वी हैव 3 यूनिट, थर्ड यूनिट. आर यू फॉलोइंग? क्या हो रहा है यहाँ पे? सर पर ये तो फिर पीरियोडिक ही नहीं होगा. क्या हुआ?
पीरियोडिक फंक्शन नहीं सर होगा फिर। हम पीरियोडिसिटी पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम वो सिग्नल्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि हम बस ये देख रहे हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय हैविंग सो इफ अ सिग्नल इज हैविंग इन्फिनिट नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास, व्हाट डज इट मीन, हम बस वो देख रहे हैं। हम पीरियोडिसिटी और फोरियर सीरीज नहीं निकाल रहे हैं सिग्नल का। दिस इज नॉट बेसिकली यही है कि कंडीशन सेटिस्फाई करता नहीं तो इसकी फोरियर सीरीज वैसे भी नहीं निकलेगी। ठीक है, तो ओके सर। so this is how a certain function looks where there are infinite number of maximas and minimas. All right. The second condition, अच्छा एक काम करता हूँ मैं, just because मेरे को बार बार switch करना ना पड़े। मैं तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ ये पीपीटी, तो तुम लोग पीपीटी खोल के रखो और उसमें जो जो मैं पॉइंट्स तुम्हारे साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, मतलब लिख के शेयर कर रहा हूँ, उसको थोड़ा पॉइंट को पढ़ते रहना साथ साथ में as I keep telling you guys. Okay, Fourier series PPT, where is it? Fine. तो बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, तुम लोग जल्दी से ये वाली पीपीटी डाउनलोड कर लो। जीसी पे मैंने अपलोड किया है, क्लास वर्क क्रिएट किया है मैंने जीसी पे, और फोरियर सीरीज का क्लास वर्क है उधर से। ये जो पीपीटी है इसको डाउनलोड कर लो। ज़्यादा बड़ी पीपीटी नहीं है, 4 ही स्लाइड्स है। बेसिकली यहाँ पे जितना भी हम डिस्कस करेंगे मैं लिख के डिस्कस करूंगा सारा। अब मुझे बता देना हो गया डाउनलोड तो। हो गया सर डाउनलोड। ओके, बाकी सबका भी। यस सर। ठीक है, तो उसका भी जिसने भी डाउनलोड कर लिया है पीपीटी ओपन कीजिए और सेकंड स्लाइड खोल लेना जहाँ पे डिरिचलेट्स कंडीशंस मेंशन्ड है। और हम लोग करंटली फोकस कर रहे हैं द थर्ड, वी आर फोकसिंग ऑन द थर्ड एंड द फोर्थ पॉइंट। चार ही पेज है सर उसमें। हाँ हाँ, 4 ही पेज है, मैंने बताया था 4 ही स्लाइड्स है उसमें। हम्म। ठीक है, ओपन हो गया सबका? लेट्स कंटिन्यू। So the fourth point tells us that the certain function which is eligible for Fourier series has a finite number of discontinuities, right? तो हमारे पास ये स्क्वायर वेव है, right? And within a period of, let's say, 0 to pi, we have how many discontinuities? We have only one discontinuity. ठीक है, so similarly there are a lot of functions which have finite number of discontinuities. And where is this discontinuity? At this point where there is multiple values on a single x value. I mean, with respect to single x value there are multiple y values, right? Now what does a function look like if it has infinite discontinuities? So let's imagine a step function, right? So इस step function में क्या हो रहा है that
the first discontinuity occurred at, let's say, t equals to 1. So second discontinuity occurred at t equals to 1 plus half. Third discontinuity occurred at t plus 1 plus half plus 1 by 4. Right? तो वही सेम पिछला वाले जो में मैक्सिमा मिनिमस में हो रहा था, that same thing is happening here. So basically the idea is that there are infinite number of discontinuities here, right? So this certain function is not eligible for Fourier series conversion, and this certain function is also not eligible for Fourier series conversion. Fine. Excuse me, sir. Yes. So kindly will you show that slide which you showed just before this? The one which was discontinuous at x equals to pi. Sir, isn't this function discontinuous at x equals to 0 to? Why is it that? Okay, so you're saying that it is not connected here. तो अब No, ये मेरी sir. Talking about the diagram which is above this. I mean the first diagram. No, this sir, one, not this. this Next. one, yes, Sir, yes, yes. this is discontinuous Zero. at this point as well. इधर पे भी discontinuous है, 0 to pi इस point पे भी discontinuous है, इस point पे भी discontinuous है, क्योंकि हमें यहीं पे different values मिल रही है, यहाँ पे हमें multiple values मिल रही है भाई की. सर बट हम जो उसका इंटरवल है वो तो डिफाइन करें ना 0 से पाई तक, तो उसमें तो एक ही हो रहा है. हाँ तो हम वही है कि तुम कितना इंटरवल डिफाइन कर रहे हो. विद इन दैट सर्टेन इंटरवल देयर शुड बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज. देयर शुड नॉट बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, राइट? आई कैन बिल्ड अ फंक्शन इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल 0 to pi such that there are infinite number of discontinuities, right? And that type of signal which has infinite number of discontinuities is not eligible for Fourier series. Fine. It does not satisfy the Fourier series conversion के लिए. It does not actually qualify for that. All right. किसी को कोई डाउट है अभी? No, sir. Fine. Okay. So let's move on to the next slide and discuss what is a Fourier series. All right. So I'll quickly switch to my presentation. Okay, now let's understand what is a Fourier series. So Fourier series has a certain form which is given by f of x, and it's an approximation in the form of cos and sine. ठीक है? And every signal is going to have, so we are going to define a period to it. And by period, I mean, in this context, the period will be P, and the period is given by 2L. Now we will understand what is L later, but just for the time period sake, just understand that there is some period P which is equal to 2L. All right. And Joseph Fourier actually proved that A0, AN, and BN can be given by these formulas that is visible on the screen. So I know many of you must be feeling कि सर को हमें बताना चाहिए कि A0, AN, BN प्रूफ कैसे हुआ है. It is very easy to find out कि ये प्रूफ कैसे हुआ है, और अभी हम लोग फिलहाल के लिए बस इतना फोकस करते हैं कि A0, AN, BN की वैल्यूज ये हैं. ठीक है? आई एम थिंकिंग ऑफ telling you guys the proof for AN, BN, and A0 in the tutorial this week, which will be held on like Wednesday or Thursday. Is that fine with you guys? फिलहाल के लिए बस इतना ही याद रखो, इतना ही देख लो कि A0, AN, BN की ये फॉर्मूलाज हैं. एंड लेट्स सी कि इनको यूज कैसे करना है. लेट्स सी कि कैसे हमें फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी किसी भी किसी सिग्नल की, और मैं एक आर्बिट्ररी सिग्नल से स्टार्ट करूंगा. ठीक है? तो अपनी स्क्रीन्स, अपने जो भी डिवाइसेस यू आर यूजिंग, कीप दिस प्रेजेंटेशन ओपन, and by the time I'll open my
video and I'll show you कि कैसे derive करना है. So let's first look at a certain signal. अरे यार. ठीक है. Okay, so we have this signal जहाँ पे let's say signal का function is plus c where it is positive and the function is minus c where it is negative. ठीक है. Now we know that this signal can be represented using Fourier series and expressed as sum of cos and sine, right? And what does cos and sine look like? So this one is, ये कौन सा सिग्नल है ये? Is this cos or sine? Sine. Sine. Yes, it's a sine signal. And this one is cos, right? यार तुम्हें पूरी स्क्रीन दिखानी है. एक सेकंड. ठीक है. तो कोई मुझे जज, अच्छा तुम्हें बस अभी बेसिक जजमेंट करनी है. कौन सा सिग्नल बेटर रिप्रेजेंट करेगा हमारे स्क्वायर वेव को? इज इट साइन और इज इट कॉस? Sine. Sinusoidal waves. Okay. And why is that? तो there is certain property of sine and cos which makes them different. Basically दोनों सेम ही चीज है, बस एक फेज का डिफरेंस है, π/2 फेज का डिफरेंस है दोनों में. बट क्यों दोनों डिफरेंट सिग्नल्स हैं? Because one represents so one of them represents an odd function, odd signal, and one of them represents even signal. So by this idea, any odd signal, कोई भी odd signal हो, ठीक है, f of x, ठीक है, उसका जो Fourier होगा will be represented, basically the Fourier will only be in the form of sine, ठीक है, and any even signal f of x will only be in the form of cos, and I will prove it. मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा ऐसा क्यों है, कि जब हम लोग Fourier series इस वाले का जब हम इसका Fourier series कैलकुलेट करेंगे, we will figure out that cos के आगे के जितने भी कांस्टेंट्स हैं, those are coefficients of cos are going to be 0. And let's see how is that happening. Fine. So I'll start by quickly writing the Fourier series form first. Okay, a0 an cos n pi by L plus bn sin ठीक है. Is this correct? सर x रहेगा. X, हाँ, right. ठीक है. ओके, सो a0 का फॉर्मूला बताएगा मेरे को कोई जल्दी से, रिप्रेजेंटेशन ही ओपन नहीं है. 1/2 pi minus L2L f of x dx. So 1/2L 1/2 pi. It's 1/2L. So when you say 2 pi, you are actually मतलब we are try defining the period as pi. Half of period is pi, right? तो यहाँ पे L हम इसलिए लेते हैं because not every signal is going to have their periods in zero, I mean period in
लेट्स से पाई और माइनस पाई, ठीक है। तो वो पीरियड डिफाइन स्टार्टिंग में नहीं करेंगे हम, पीरियड हम लोग as we move on we'll define the period as well. So basically the period of the signal over here is 2L, which is equal to 2 pi. हमारे पास माइनस पाई 2 पाई, हम इसका फोरियर सीरीज कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो 0 to minus pi we have pi, and 0 to pi we also have pi, and total the period is 2 pi. ठीक है। now that we have defined that हमारा पीरियड 2 पाई है, so this gives us that L equals to pi, and then we write that A0 is equals to 1 upon 2L. मैं भी लिखता हूँ उसको, so पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। so since L is defined, so it is 1 by 2 pi minus pi 2 pi f of x dx, ठीक है। now तो since यहाँ पर 2L क्यों यूज किया, P is equal to? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि P equals to 2L, हम फिलहाल के लिए जस्ट रिमेंबर दिस दैट देयर इज सर्टेन पीरियड, और उसको हम 2L के फॉर्म में ले रहे हैं। बाद में जब हम लोग ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे इनका प्रूफ क्या है, तो उसमें तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि हम 2L क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि उससे पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें पता होना चाहिए फोरियर सीरीज यूज़ कैसे करना है, एंड ट्यूटोरियल में आई विल मेक श्योर कि तुम्हें ये भी अंडरस्टैंड हो जाएगी फोरियर सीरीज डिराइव कैसे हुआ है, हमें बेसिकली कोएफिशिएंट्स डिराइव कैसे किए हैं। तो कन्वीनियंस वाली बात है। आई होप इट्स फाइन विद यू गाइस कि हम लोग बाद में ही करेंगे प्रूफ्स वगैरह, ठीक है। ओके सर। ओके हाँ, तो सिंस आवर फंक्शन इज एज समवन मेंशन्ड कि हमारा जो फंक्शन है फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 0, राइट। सो इंटीग्रेशन के लिए we would have to split this integration in two parts. ठीक है। ओके तो अब हम विजुअली देखते हैं पहले इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इंटीग्रेशन इज बेसिकली एरिया अंडर द ग्राफ, राइट। डू यू गाइस एग्री टू दिस? हेलो, Yes sir. I'm saying integration is only area under the graph. So Yes, sir. by that definition, Yes, this is sir. the area under this graph, and this is the area under this मतलब this partition का area is this partition का area is this, right? So total area is what? What is the net area? 0. Yep. So by visualization by visually looking at it, we know that this is going to be 0. तो हमें basically ज़्यादा competition में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इस केस में our A0 is 0, and you guys know why, ठीक है। Now let's look at AN. AN is 1 by L minus L to L f of x cos n by x by L dx. Is this correct? Yes, sir. Okay. तो अगेन हम लोग वही चीज करेंगे, इसको भी स्प्लिट ही करेंगे क्योंकि डिसकंटिन्यूअस एट 0, और L की वैल्यू क्या हमारी पाई माइनस पाई टू 0। तो मैं एक स्टेप बीच में स्किप ही कर देता हूँ, ठीक है। एंड मैंने तुम्हें बोला था दिस स्क्वायर फंक्शन इज मतलब हम लोग जस्ट हाइपोथेटिकली ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग अगर ये फंक्शन डिफाइन करेंगे इट विल गेट रियली कॉम्प्लिकेटेड, और फंक्शन बेसिकली एंड में पूरा का पूरा कॉमन आउट हो ही जाएगा। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि दिस फंक्शन इज नेगेटिव सी इन द नेगेटिव पोलैरिटी एंड पॉजिटिव सी इन द पॉजिटिव पोलैरिटी, फाइन। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैं लिखूंगा, सो माइनस पाई टू 0 इज नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे मैंने माइनस सी लिख दिया, कॉस ऑफ ओके ए एन नहीं है, आई एम कैलकुलेटिंग A1,
ठीक है, एंड यूल नो कि बाकी के सारे एज भी क्यों 0 हो जाएंगे इससे। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 ली है यहाँ पे, तो पाई बाई पाई x dx। ठीक, ओ शिट, इसके आगे और भी है 0 to पाई c, ठीक है, इंटू cos x dx। ठीक है, ये x dx है यहाँ पे। आप कैलकुलेट करते हैं 1 बाई पाई, so this is basically integral minus pi 0. Sir, what is that C? C is we can say C is actually proxy for the function. हम लोग यहाँ पे पूरा फंक्शन नहीं लिख रहे हैं, हम लोग पूरे फंक्शन को बस C कह रहे हैं सीधा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो फंक्शन पूरा का पूरा कॉमन आउट ही हो जाएगा एंड में, क्योंकि जो रियल कैलकुलेशन है उसमें पूरा का पूरा फंक्शन ही कॉमन आउट हो गया। तो फॉर द कन्वीनियंस सेक मैं तुम लोग को भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी में नहीं डालना चाहता और मैं खुद भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी में नहीं जाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सी लिया है। लेकिन बेसिकली जब तुम्हें क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे इसके, तो तुम्हें पूरे पूरे फंक्शंस दिए जाएंगे और तुम्हें कौन सी इंटरवल में क्या वैल्यूज है ये भी प्रोवाइड की जाएंगी। बेसिकली हो सकता है कि तुम्हें एफ ऑफ एक्स प्रोवाइड किया जाए विच इज़ माइनस पाई टू जीरो, बिटवीन माइनस पाई टू जीरो इज़ 1 एंड बिटवीन पाई टू जीरो, जीरो टू पाई इट्स -1, तो उसको इंटीग्रेट करके तुम फोरियर सीरीज कैलकुलेट करोगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे सी और माइनस सी ही ले रहे हैं। ठीक है, तो माइनस सी, दिस इज cos x dx प्लस 0 to पाई c cos x dx। अब माइनस सी हमने बाहर निकाल दिया है। सर पर इससे 0 तो नहीं आएगा ना? क्यों? हो गया ना 0, वो तो मेरे को दिख रहा है क्लियर यहाँ पे 0 है। सर सी भी तो एक्स का फंक्शन होगा, तो उसे भी तो इंटीग्रेट हाँ, करेंगे। तो हमने स्क्वायर वेव लिया हुआ है। अभी काफ़ी डाउट्स आ रहे तुम्हारे, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, हमने स्क्वायर वेव लिया हुआ है। ठीक है, स्क्वायर वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट हैज़ अ सर्टेन वैल्यू इन द, मतलब इट हैज़ अ सर्टेन वैल्यू इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी। तुम्हें अगर स्क्वायर वेव बोलना है तो वोल्टेज जैसे तुम्हारा काम करता है। ठीक है, सो योर वोल्टेजेस आर लाइक +5 -5 +5 -5। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज हैं कुछ, यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू है, y पे इसकी कुछ वैल्यू है, तो मैं उस वैल्यू को c ले रहा हूँ, यहाँ पे उसकी वैल्यू को -c ले रहा हूँ मैं। ओके सर। हम्म, ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर सी एक्स का फंक्शन थोड़ी ना होगा सर, वो तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना। वो न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने उसको अभी बताया, जस्ट अभी बता के हटा हूँ, और यहाँ पे -पाई है। हाँ, तो कोई कह रहा था कि ये 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा 0? अगर मैं -c बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, इंटीग्रल -पाई टू 0 cos x dx, मतलब एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ cos x dx इन नेगेटिव -पाई टू 0 प्लस c एरिया अंडर द ग्राफ फ्रॉम 0 to पाई cos x dx। यहाँ पे आ जाओ। सो आई एम सेइंग कि दिस इज -पाई, दिस इज 0 एंड दिस इज पाई। So this is the area under the graph from -पाई to 0, ठीक है, and this is the area under the graph from 0 to पाई cos के लिए। तो टोटल नेट एरिया क्या है, मेरे को कोई बताएगा आप? सर नेट एरिया तो तब 0 ना अगर एक -c सेकंड, नहीं होगा। एक सेकंड, दिस इज -पाई, दिस इज पाई, 0। 0 आया। यस सर। ठीक है, कोई नहीं, मेरी गलती हो गई थी वहाँ पे थोड़ी सी, मैंने तुम्हें पूरा एक्स्ट्रा दे दिया था एक्चुअली। ठीक है, तो तुम्हें दिख गया ना ये 0 क्यों है, तो ये 0 हो गया। सिमिलरली तुम्हारा a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a3 इक्वल्स टू अप टू an तुम्हारा क्या है, 0। फाइन, अब
हम सिमिलरली बी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, और बी की मैं वैल्यूज तुम्हें, बी की बेसिकली मेरे पास वैल्यूज पड़ी हुई है कि अगर तुम सेम इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हारे b0 तुम्हारी b1 की वैल्यू जो है इज गोइंग टू बी 0, b2 की वैल्यू इज गोइंग टू 0, b3 की वैल्यू इज गोइंग टू बी 2/3, b4 की तुम्हारी हो जाएगी फिर 0, b5 की हो जाएगी तुम्हारी 2/5, ठीक है, एंड सो ऑन। सेम कैलकुलेशन, सेम इंटीग्रेशन, बस तुम्हें यहाँ पे क्या लेना है, बी एन के लिए तुम्हें वो वाला फॉर्मूला यूज करना है विच इज 1/l इंटीग्रल माइनस l to l f of x साइन n by x over l dx। इसको जब तुम सॉल्व करोगे फॉर द पीरियड l इक्वल्स टू पाई, सो फॉर हाफ पीरियड विच इज l विच इज इक्वल्स टू पाई, तो तुम्हें ये सारी वैल्यूज मिलेंगी b की। तो यहाँ पे एक पैटर्न ये है दैट एवरी इवन b इवन तुम्हारा क्या होगा 0, और b ऑड तुम्हारा क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी 2 अपॉन द वैल्यू n, इस केस में, पर्टिकुलर केस में, ठीक है। तो बाय all these computation we have actually showed that हमारा f of x is going to be approximated by 2/3 sine 3x plus 2/5 sine 5x plus 2/7 sine 7x and so on। तो ये है तुम्हारा फॉर स्क्वायर वेव, फॉर दिस पर्टिकुलर वेव, ठीक है। तुम्हारा इसका फोरियर सीरीज ऐसा दिखता है। दिस इज द अप्रोक्सीमेशन, फोरियर सीरीज अप्रोक्सीमेशन। किसी को कोई डाउट है इसमें? तुम्हें पूरी कंप्यूटेशन चाहिए इसकी, तो अभी पूरी कंप्यूटेशन भी करने को रेडी हो। सर क्वेश्चन में ग्राफ गिवन होगा सर कोई? हाँ, तो मैं तुम्हारे क्वेश्चंस देख रहा था, असाइनमेंट है मेरे पास पड़ी हुई। तो तुम्हारे क्वेश्चंस कैसे होंगे, या तो तुम्हें कोई बेसिक सा एफ ऑफ एक्स दिया होगा विच इज पीरियोडिक इन नेचर, ठीक है, तुम्हें कोई बेसिक सा एफ ऑफ एक्स प्रोवाइड किया जाएगा, और यू विल बी प्रोवाइडेड एन एफ ऑफ एक्स विच हैज लेट्स से सर्टेन k value in certain interval, let's say from -n to, so this is the period, right? So l की वैल्यू होगी -n to 0 and certain value, let's say l p, भाई साहब ये सारे यूज्ड है, x भी यूज्ड है, o, ठीक है, इन द पीरियड लेट्स से n, मतलब ऐसे तुम्हें दिया होगा, एक स्प्लिट फंक्शन भी दिया होगा तुम्हें, और कुछ ऐसा भी दिया होगा तुम्हें। बेसिकली क्या ही रिकॉग्नाइज करना है, बेसिकली यू जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज वेयर आर द डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है। और इंटीग्रेशन के टाइम पे तुम्हें कहाँ कहाँ पे स्प्लिट करने की जरूरत है, ये दो चीजें अगर तुम एक बार मास्टर कर लोगे तो तुम्हारे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फोरियर सीरीज वाले, ठीक है। एंड फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द प्रूफ्स, काइंडली मेक श्योर दैट यू कम फॉर द ट्यूटोरियल, क्योंकि ट्यूटोरियल में आई विल डिस्कस ऑल द प्रूफ्स, और तुम्हें और क्लैरिटी मिल जाएगी कि फोरियर सीरीज एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। किसी को कोई डाउट्स अभी तक? सर वो थर्ड पॉइंट समझा दो। थर्ड पॉइंट एज इन कौन सा? नंबरिंग नहीं कर रखी है यार मैंने बहुत। मैक्सिमम मिनिमम वाला। लेट्स सी मैक्सिमम मिनिमम वाले में क्या था। ये वाला समझ में आया कि इन, तो यहाँ पे तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ, दिस इज इन सर्टेन पीरियड, गिवन सर्टेन पीरियड, ठीक है। फाइनाइट नंबर ऑफ मिनिमास एंड मैक्सिमास एग्जिस्ट करने चाहिए। सो आई एम सेइंग दैट माय पीरियड इज फ्रॉम 0 to t, तो उसके बीच में कितने मैक्सिमास हैं? देयर इज ओनली वन मैक्सिमा, देयर इज ओनली वन मैक्सिमा एंड 2 मिनिमास which is finite. Fine. So this certain is
अगर सिर्फ ये वाला रूल हम लोग देखें मिनिमास एंड मैक्सिमा वाला, सो दिस सर्टेन सिग्नल इज एक्चुअली एलिजिबल फॉर फोरियर सीरीज अप्रोक्सीमेशन. ठीक है. बट इन दिस केस, इस ग्राफ के केस में देखते हैं 0 to t के बीच में ही हमें देखना है. ठीक है, हमने पीरियड इतना ही लिया है. तो 0 to t के बीच में क्या हो रहा है कि ये ग्राफ हमारा जो है इट इज बाय एवरी यूनिट इट्स वेवलेंथ इज गेटिंग हाफ्ड. जो वेवलेंथ है इसकी हाफ होती जा रही है. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि 0 to t के बीच में ही सारी वेवलेंथ्स बन रही हैं. देयर आर इनफिनाइट वेवलेंथ्स, मतलब देयर आर इनफिनाइट वेव यूनिट्स, इनफिनाइट वेव यूनिट. जैसे भी तुम्हें समझ में आया, तुम बस इतना आइडिया लगा लो कि इसके बीच में इनफिनाइट मैक्सिमास और मिनिमास है. तो सिंस देयर आर इनफिनाइट वेव यूनिट्स, देयर आर इनफिनिट मैक्सिमास एंड मिनिमास. ठीक है. So this actually disqualifies it from being converted into a from being approximated as a Fourier series. इसको गोली मारो, ये थोड़ा ऐसे कॉम्प्लिकेट कर देगा, फालतू की मैथ ऐड कर दी मैंने. ठीक है. हो गया क्लियर? हाँ जी सर, वो एटमोस्ट क्यों लिखा था? एटमॉस से हमारा मतलब है कि फाइनाइट से ज़्यादा हो ही नहीं सकते हैं. अगर फाइनाइट से ज़्यादा होगा किसी भी सिग्नल में तो वो फोरियर, मतलब एटलीस्ट एटमॉस का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता ही है, राइट? एटलीस्ट मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू या तो इतनी हो या तो इससे ज़्यादा हो. एटमॉस का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू या तो ये हो या तो इससे कम हो, इससे ऊपर नहीं जा सकती. सो व्हेन वी से समथिंग इज एटमॉस फाइनाइट, वी मीन दैट इट कैन नॉट गो बियॉन्ड फाइनाइट, एंड बियॉन्ड फाइनाइट इज इन्फिनिट. ओके ओके, थैंक यू. ओके. Excuse me, sir. यस. Sir, the period from 0 to t is a finite one. So shouldn't there be finite number of waves? Can you see finite number of waves in this? Okay, so it's a mathematical concept. So given any closed interval, you can always find infinite number of let's say values. तुम 0 से 1 के बीच में कितनी values find out कर सकती हो? Infinite. Exactly. So this is exactly the same concept. यहाँ पे since we are actually halving the wavelength, every unit's wavelength is getting halved, there is no way कि ये wavelength जो है t को क्रॉस करेंगी, t पीरियड को क्रॉस करेंगी. I mean it's a very Yes, sir, I interesting, got it. हाँ, it's a very interesting concept. अगर तुमने कभी पढ़ा हो या फिर कहीं सुना हो कि so let's say we have a piece of bread, if we keep on cutting it in half, let's say हमने इसको अभी हाफ किया एंड उसके बाद यहाँ से हाफ किया, उसके बाद यहाँ से हाफ किया, तुम्हारा ब्रेड कभी खत्म नहीं होगा. तुम उसको हाफ ही करते रहो, तुम्हारा ब्रेड कभी खत्म नहीं होगा. you can do the same process infinite times. ठीक है. So that is the same concept that is being used here. यहाँ पे जो है तुम्हारे waves जितनी है, wave units जितनी है, there are an infinite number of wave units, और 0 to t के बीच में infinite number of maximas and minimas है. Yes, sir, I got it. Sir, kindly will you explain the concept which you explained in the last, I mean the third point where they are discontinuous. You wrote something. हाँ, discontinuous का देखते हैं अभी. ठीक है. Sir, not this one, the last slide. The last slide. Is it in this one? So after this. After this. This one? No, sir, after this. There is nothing after this. अच्छा, Sir, I was yes. saying कि ये वाला कि you have to figure out where are the Yes, sir, yes. discontinuities. Yes. हाँ, तो तुम्हें ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ what I mean by discontinuity. So, are you guys familiar with the concept of discontinuity and continuity? Yes, sir. ना?
तो कंटिन्यूटी Yes. टेल्स अस दैट देयर, हाँ, तो कंटिन्यूटी हमें ये बताता है कि No, sir, I हमें, didn't हाँ बताओ। understand what you were explaining in that. I mean, हाँ, I was, what I f was, of x. I didn't understand the concept in overall. I हाँ, know तो what is नहीं, so discontinuity. what I was telling over here is that to solve any kind of problems that you'll be getting over the period of next week, तुम्हें जितनी भी problems मिलेंगी, चाहे through assignment, maybe quiz, maybe, or maybe we will do some examples. So when you solve any kind of problem, there are two main points that needs to be considered. The first is that you have to see whether there are discontinuities in the function, right? So it is not necessary that the signal need to have a discontinuity. A sine wave doesn't have a discontinuity. So my point was that you need to figure out whether the signal has discontinuities, and if it has discontinuities, you need to figure out what are the intervals on which you are going to integrate. Because you can integrate only in the continuous intervals. You cannot integrate in the discontinuous intervals. Okay? So that was what I'm Yes, telling sir. you. That was, Yes, sir. Thank Excuse you, me, sir. 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 सर हाँ जी। सर ये जो लास्ट में जो फोरियर सीरीज लिखी थी ना सर, एक बार ये प्लीज बता दो सर, लास्ट वाला एकदम। हाँ ये जो लिखी है, हाँ, हाँ तो ये बता देता हूँ तुम्हें, नो इश्यूज। ये फॉर्मूला याद है? प्रेजेंटेशन खुली है? हाँ सर। तो प्रेजेंटेशन में इस फॉर्मूला को ध्यान से देखना, ठीक है? तो हमने A0 कैलकुलेट किया, A0 हमारा क्या आया? 0, राइट? हमने यहाँ पे प्रूफ किया that all ANs are going to be 0, right? So since all ANs are going to be 0, this is also 0. Fine. Yes. And then I showed that B1, B2, B3 की कुछ वैल्यूज आ रही हैं by computing this thing. मैंने कंप्यूट नहीं किया, इट्स वेरी इजी। बेसिकली f of x को तुम्हें c या माइनस c ही लेना है, और बाद में साइन का इंटीग्रेशन तुम्हें पता ही है, ठीक है? तो कंपटीशन के बाद हमें ये वैल्यूज मिल रही है। फॉर एवरी इवन b we are getting 0, and for every odd b we are getting this pattern 2/n, ठीक है? तो बाय दिस, क्या बोल रहे हो सर? B1 तो ऑड है ना, 1 तो ऑड है, तो वो तो 0 है। हाँ, तो सीरीज कहीं ना कहीं से शुरू होती है ना, तो हमारी जो ये पैटर्न की सीरीज, मतलब जो पैटर्न की सीक्वेंस है वो 0 से शुरू हो रही है। 0, 2/3, 2/5। एक सेकंड यार, यस सर। स्टिल कंफ्यूज्ड, सर B1 लेट की मी वैल्यू मेक तो श्योर। किसी ने निकाली B1 की वैल्यू? Bn, do we neglect 2c by pi? Okay, wait a second. जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी तुम्हारा ये वाला डाउट क्लियर करता हूँ। हो सकता है कि मैंने तुम्हें वैल्यूज कुछ ज़्यादा ही डायरेक्टली पकड़ा दी हैं। ओके, सो B1 की वैल्यू, माय बैड, इट इज 4c by pi, and B2 की वैल्यू is also 4c upon 3 pi, and this is 2c upon 5 pi, 4c upon 5 pi. ठीक है? Now the pattern is actually visible to you guys, right? कि क्यों हम लोग यहाँ पे, एक मिनट इसको भी चेंज कर देता हूँ, 4c upon n pi, ठीक है? इसको भी चेंज कर देता हूँ। This is x, 4c upon 3 pi sin 3x and so on. जिसको भी ये डाउट था, अभी क्लियर हुआ कि पैटर्न पाई नहीं आएगा B1 का वैल्यू? नहीं आएगा।
हम कैलकुलेट कर लेते I हैं यार, think एक sir. कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, एक Yes, कैलकुलेट sir. करके दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ओके, कोई बाइक पे है क्या भाई? तो b1 हमारा कैसा है, इट्स 1/पाई ओवर -पाई टू पाई। मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, एल की वैल्यू मैंने डायरेक्टली पाई पुट कर दिया, अच्छा तुम्हें विजिबल ही नहीं है। b1 इज इक्वल्स टू 1/पाई -पाई टू पाई। ओके, f of x को f of x ही रहने देते हैं, इसकी दो वैल्यूज हैं, प्लस सी और माइनस सी। dx साइन n हमारा यहाँ पे 1 है, पाई अपॉन पाई x हो जाएगा, सो दिस इज साइन x dx। ऑलराइट, सो b1 इज इक्वल्स टू 1/पाई, इंटरवल ले लेते हैं, -पाई टू 0। -पाई टू 0 में हमारा साइन क्या है, नेगेटिव है, सॉरी वेव सिग्नल क्या इज नेगेटिव, प्लस 0 to पाई पॉजिटिव सिग्नल sin x dx। ठीक है, तो c कॉमन ले लेता हूँ मैं, -पाई टू 0 ऑफ माइनस साइन x dx प्लस 0 to पाई sin x dx। ठीक है, अब साइन वेव देखते हैं। तो हमारा -पाई, वेयर इज दिस -पाई, सो 0 पाई/2 पाई -पाई टू पाई। तो इन द इंटरवल -पाई टू 0 हाँ, तो इसका नेगेटिव लिया ना हमने, वी आर बेसिकली इंटीग्रेटिंग -sin x dx, राइट। तो बात तो वही है, टोटल ये कितना आएगा, सो दिस इज 0 एंड 0 to पाई में भी, अरे यार आई थिंक आई हैव gotten this wrong, just a second guys। Sir 4c/पाई आएगा। 4c/पाई आ रहा है, बट आई वांट टू शो यू विजुअली, और मेरे ख्याल से मैंने डायग्राम थोड़ा सा गलत बनाया, तो आई एम जस्ट वेरीफाइंग इट कि डायग्राम सही है कि नहीं है। 4c/पाई, सबका 4c/पाई आया है जिसने भी सॉल्व किया है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो सिंस वी आर एक्चुअली फाइंडिंग साइन एक्स का, ठीक है, तो पाई 0 to -पाई के बीच में देयर नीड्स टू बी ओनली वन सिग्नल, आई मीन वन पीक। So this is actually -pi, this is 0, this is pi, fine। So since we are finding out integral of -sin x dx, so that is this area, right? And since it is negative, so let's say this area is a, so it's negative, this is the area under this graph, right? And this is already -a, so sum of this will be sum of this will be 2a. And how is minus getting eliminated? Where is it? So how is minus getting eliminated? So c/pi so this, sorry, so this area is so this is -a plus a plus a, so 2ac/pi
and we will find out a. तो a calculate, किसी ने a calculate किया है? This is, I think it is 2, so this is 4c by pi. तो जिसने कैलकुलेशन कर लिया दैट्स गुड, और जिसने नहीं किया दिस इज द प्रोसेस दैट वी नीड टू फॉलो. ठीक है, सो दिस वे वी हैव फाउंड आउट आवर फर्स्ट coefficient, that is b1. Similarly, if we calculate b0, it's going to be b2, it's going to be 0. ठीक है, and when we calculate b3, it is going to be 4c upon 3 pi, and the pattern continues. So जब हम ये कर लेंगे तो हमारा फोरियर सीरीज की नोटेशन के हिसाब से we will get this as the Fourier series expansion, Fourier series approximation. So this is an approximation. This is not actually the exact. This is not the exact signal, but this is approximation, and this actually will help you to easily analyze the signal. Sine को हम लोग easily analyze कर सकते हैं. So that will help. This will help you. I hope I was able to clear the doubt जिसका भी था. And नहीं हुआ है तो I can actually share the proof, तो उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. Any more doubts? Sir, when will our tutorial will held? Okay, tutorial give me one day. I'll maybe announce tomorrow or day after tomorrow itself. Wednesday को तो मैं बता दूंगा. अगर Wednesday को तुम्हें बताऊंगा तो basically Thursday या फिर Friday को तुम्हारा tutorial रखूंगा. और अगर मैंने कल ही बता दिया तो हो सकता है कि Wednesday या Thursday को रखूं. सभी क्लास का होगा या ग्रुप वाइज होगा? पूरी क्लास का. अगेन आई एम रिपीटिंग, पूरी क्लास का एक साथ ही लूंगा. तो मेक श्योर कि तुम लोग जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं या फिर तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किए जो तुमसे नहीं हो रहे सॉल्व, वी कैन ऑल टुगेदर एक्चुअली, मतलब एक ग्रुप स्टडी की तरह ही होगा ट्यूटोरियल, और कुछ नहीं है. तो हम लोग एक दूसरे से आंसर्स लेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, जानेंगे मतलब कैसे किया कैसे नहीं किया. ठीक है, तो लेट्स सी कि फर्स्ट ट्यूटोरियल कैसा होगा, क्योंकि आईसीई वालों के साथ तो मेरा काफ़ी अनप्रोडक्टिव रहता. तुम लोग मेक श्योर करना कि कुछ डाउट्स वगैरह लेके आओ. सर क्लास स्टार्ट हो गई. हाँ जिसकी सर लीव I'm so sorry guys, 10:30 हो गया तुम्हारी क्लास का, दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है. सो यू गाइस आर फ्री टू लीव. अटेंडेंस होगी. अटेंडेंस, हाँ अटेंडेंस तुम्हें बता दूं, आज शाम को 5 बजे तक जितनी भी असाइनमेंट्स आ जाएगी उनकी अटेंडेंस इस हफ्ते की लग जाएगी. अपने दोस्तों को भी बता देना जो भी इस बैच में जो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ठीक है, और लेट मी नो अगर कोई प्रॉब्लम हो असाइनमेंट. सर एक आपने कहा था कि एटलीस्ट 5 क्वेश्चन कर कितने बजे? 5 बजे. अगर 5 बिफोर 5 इवनिंग. सर एक एटलीस्ट 5 क्वेश्चन करने हैं. कर दीजिए ना सर. क्या सर 12 PM कर दीजिए ना, सबमिशन डेट. यस सबमिशन डेट क्या करना है? डेट नहीं सर, टाइम. आज का Time. 12 PM सर. क्लास का ये मंडे वाला? नहीं सर वो असाइनमेंट का बोल रहे सर, सबमिशन आज असाइनमेंट दिए वो सेकंड वाली असाइनमेंट. हाँ 12 PM क्यों? सर आज बना के कर देंगे कुछ अच्छा बात. 12 PM मतलब रात के 12 बजे तक? यस सर, रात के 12 बजे तक. सर आपने रात के सर यहाँ पे डेट एक्सटेंड कर दो सर, डेट एक्सटेंड कर दीजिए प्लीज. नहीं डेट एक्सटेंड नहीं होगी. टाइम सर कर दीजिए, रात तक बन जाएगा. 5 बजे तक जितनी असाइनमेंट्स हो जाएंगी I'll consider those. यार तुम्हें अगली असाइनमेंट भी देनी है यार. तुम्हें रात के 12 बजे तक अगर टाइम दे दूंगा तो फिर अगली असाइनमेंट आज सोच रहा था मैं शाम को दे दूंगा तुम्हारी 5 बजे के बाद. सर एटलीस्ट 5 क्वेश्चन करने हैं ना. एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस. या तो सर जिन्होंने 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए उनको फुल मार्क्स मिलेंगे. जिसको मार्क्स की चिंता हो रही है भाई, तुम पहली बात है कि तुम्हें पहले से ही बताया फर्स्ट क्लास से कि मार्क्स की चिंता मत करो. तुम लोग को जितना बोला जाए असाइनमेंट सबमिट करनी है असाइनमेंट सबमिट करो. तुम्हें बोला गया अगर क्विज देना है तो क्विज दो. तुम्हें बोला गया एग्जाम देना है तो एग्जाम दो. बाकी मार्क्स वगैरह सब मेरे हाथ में है. मेरे को जैसा कन्वीनियंट लगेगा हमारे सबके लिए कि पूरी ओवरऑल क्लास का एवरेज जैसे मेरे को कन्वीनियंट लगे मैं उस हिसाब से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा. तो
किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं कि कोई फेल होगा या फिर किसी को बहुत ही कम नंबर है, किसी को बहुत ही ज्यादा नंबर है, बहुत ही नॉर्मलाइज मार्क्स मिलेंगे सबको, टेंशन मतलब। सर लीव कर दें सर, क्लास ज्वाइन करनी है जी सर। जी कहाँ, प्लीज 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 लीव करो यार, तुम्हारी अगली क्लास है। थैंक यू Yes. सर। थैंक यू सर। सर हाँ जी थैंक यू सर। सर मैंने Thank you, असाइनमेंट sir. के क्वेश्चंस को लीनियर में कन्वर्ट करके किया था, मतलब एग्जैक्ट वाला मेथड यूज नहीं किया, तो उससे आंसर अलग अलग आ रहे हैं, एग्जैक्ट वाले से अलग आ रहे हैं और लीनियर वाले से अलग आ रहे हैं। तो मेरे को एक काम करना, मेरे को ईमेल कर सकते हो तो ईमेल कर देना यार अपना जो भी तुमने वर्कआउट किया है, तो मैं सर वो मैंने देख लूँ पहले। असाइनमेंट अपलोड कर दी थी, अपलोड कर दी है सर असाइनमेंट अच्छा, पहले। नाम नाम क्या है? एक सेकेंड, मानवजीत नमन बोल रहा है ना? मानवजीत। मानवजीत ना, ठीक है मैं देखता हूँ असाइनमेंट में और मैं फिर बताता हूँ। थैंक यू सर। ओके एक्सक्यूज मी सर। यस सर जो हम फोरियर सीरीज से फंक्शन लिखेंगे हाँ जी, वो सिर्फ -π to π में ही डिफाइन होगा क्या? तो बेसिकली जितने भी फंक्शन तुम उसको -π to π में ही डिफाइन करना चाहोगे, क्योंकि जो तुम्हारा फोरियर सीरीज है वो तुम्हारा साइन और कॉस के फॉर्म में है, और साइन और कॉस की जो डोमेन है वो 0 to 2π के बीच में ही होती है, उससे ऊपर नहीं जाती और उससे नीचे नहीं तो जाती है। सर डोमेन तो उनकी इनफाइनाइट होती है, मतलब किनकी? ना माइनस ना ना ना, इन्फिनिटी। तुम अगर साइन एक्स में इन्फिनिट वैल्यू डालोगे तुम्हें क्या मिलेगा? साइन इन्फिनिटी क्या होता है? सर कुछ ऑसिलेटिंग वैल्यू होगी हाँ मैं -1 वही to कह 1 रहा के हूँ ना बीच। कि वो जो ऑसिलेट होगी वो -π to π के बीच में ही ऑसिलेट होगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। नहीं मैं तो सर उसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, साइन इन्फिनिटी की। वो -1 to 1 के बीच में लाई करेगी। डोमेन तो उनकी इन्फिनिटी है, तभी तो सर हम साइन एक्स बनाते रहते हैं, मतलब इनफाइनाइट तक। पॉइंट ये नहीं है ना, पॉइंट ये है कि जो तुम एज यू आर सेइंग कि ऑसिलेशंस होती रहेंगी ना, तो जो ऑसिलेशंस होंगी दोस ऑसिलेशंस विल अकर ओनली इन द रेंज फ्रॉम -π to π, उससे ऊपर नहीं जाएगी। जो तुम्हारे एंगल्स होंगे साइन के, तुम अगर लेट्स से वो तो सर हमने तो पढ़े गया ना कि मतलब जैसे sin 3π भी तो हम डिफाइन करते हैं, -2π से 3π भी 0 तो होता है। तुम्हारा 3π has does since sin and cos are periodic functions, तुम्हारा 3π is equal to some other value। वो किस चीज के इक्वल है? तो sin, I guess sin n pi's are same, right? sin 0, हाँ sin sin pi, हाँ sin 2π, जी sin 3π, these all are same। तो हाँ बेसिकली जी यू हाँ जी। स्टिल एंड अप एट, तो तुम्हारा sin 3π is equals to sin pi, तो तुम्हारा दोनों का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेम ही नहीं होगा? नेट वैल्यू अगर क्या होगी साइन तुम्हारी? सेम ही नहीं होगी? किस चीज की सर, दोबारा बोलते बताइए। साइन 3π और साइन पाई हाँ अगर तुम लेते हो, ठीक है, हाँ जी सर। लेट्स से, so not sin 3π exactly, but let's say sin x and sin 3x within the same interval। तो I'm defining some interval -x to x where x is between -π to π। तो isn't both of them are going to have same integration? सर sin 3x की -π to π में और sin x की -π to π में डिफरेंट इंटीग्रेशन आएंगी मुझे लगता है। ट्राई करना एक बार और मुझे बताना। ठीक है हम्म। ठीक है।